नादिगाम शिपियंस फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प झड़प के दौरान आख मिलिटेंट फौज 56 जाए तबाह पुलिस। श्रीनगर एसिड वाकस खिलाफ पुलिस तरफ कार्रवाई 3 मुलजिम गिरफ्तार FIR दर्ज कयान जायन पे एहतजाज। तो महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली टंगमर्ग तो अत अंद पक इलाकन मज शीन पेन जारी सयाह सठई खुश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। कांग्रेस लीडर राहुल गांधीन लोकसभा मज मरकजी सरकार नकद चीनी करान वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार खारजी पॉलिसी किन मुल्क हने हने कमजोर सपदान तो युदवै न खारजी पॉलिसी हूं जायजे हेनाव तेल हेकि मुल्क मजीद कमजोर सपदित तो दुश्मन मुल्क हेकन पन्निस मकसदस मज कामयाब सपदित। We have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. And by the way, in case you haven't realized it, in case you haven't understood what's going on, it is very clear that the Chinese and the Pakistanis are planning. Look at the weapons that they are buying. Look at their activity. Look at the way they are talking. Look at who they are speaking to. I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder and we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I am saying, because the Chinese will act. The nation is now at risk. The nation is at risk. The nation is at risk from outside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. And so that is why I thought it was important that I speak today. I know that many of you will just rubbish what I'm saying. I understand it. That's what you've been told to do. And I'm happy to let you do it. But remember what I said. You are putting this nation, this wonderful nation and its people at huge risk. जनूबी कशीर हंदिस जिले शिपियंस मज आज तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसदिक इतला मिलनस पे नादिगाम शिपियन घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन तबादुल सपोद गोलियन हंदिस तबादुलस दौरान ये मिलिटेंटन हज 56 जाय अक बाग मज तबाह करना आई तत अख मिलिटेंट तो गोलियन हंदिस तबादुलस दौरान फौत सपदमुत।
سرینگر کس عیدگاہ علاقس مز یہ رات شام پت اکس نوجوان کور پہ ایسڈ لائنہ آو یتھ دوران سہ شدید زخمی سپز تو یہ معاملہ برو کن ین پتہ سیاسی سماجی مذہبی تمام لوکو طرف واقعہ مذمت کران منگ کرنا آئی ز مجرمن خلاف گھس سخت کاروی عمل مز ان یت زن برو کن یت واقع پیش ین تت معاملس حوالہ کیس درج کرت واقعس مز ملوث ترین نوجوان ہز گرفتاری عمل مز ان آمت پولیس بیان مطابق ون آمت ز تمام ثبوت حاصل کرنے پتہ سجاد الطاف رتر ساکن بچھواڑا ڈلگیٹ مومن نذیر شیخ مہجور نگر تو محمد سلیم گنائی پادشاہی باغ سری نگر گرفتار کرنا آمت پولیس بیانس مز ون آمت امہ واقعک اہم ملزم سجاد الطاف یل زن مومن نذیر تو محمد سلیمن یہ واقع انجام دنس من سجادس اتواس کور یم کن ترشونی نوجوان خلاف FIR درج کرنا آو یپر سری نگرس مز مختلف جائن پہ مختلف سیاسی تو سماجی تنظیموں طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یتھ دوران احتجاج مز شامل لوک انصاف فراہم کرنچ منگ کران یل زن احتجاج مز شامل لوکو طرف سرکارس منگ کرنا آئی ز مجرمن خلاف گھس سخت کاروی عمل مز ان یت زن وادی مز برو کن یت واقع پیش ین یل زن سری نگر میونسپل کارپوریشن میئر جنید اعظم متون آز متاثر عیالس پن اکہ ریتک تنخواہ تہ فراہم کور PDP صدر محبوبہ مفتی آز لولاب کپوار دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ دویم پارٹی لیڈر تہ موجود دورس دوران یہ تمو پارٹی لیڈر عبدالحق خان سند گھر گھت اہل خانس ست تعزیت کور تت تمو ذرائع ابلاغس ست کت کران وونمت ز مرکزی سرکار طرف پیش کرنا آمتس بجٹس مز چھنہ عام لوکن نوجوانن تو بے روزگارن باپت کی خاص نظر گژھان ملک کی سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ ہے بے روزگاری. اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. آپ نے کسانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. آپ کے جو مڈل کلاس جو فیملیز ہیں, جو اوسط درجے کے گھر ہیں, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بجٹ صرف کس طرح ان کا خزانہ بھرنا ہے, اس میں کیسے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصولا جائے, اس کی بات ہے. اس بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کوئی سہولیت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. کھلسور شانگس اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ انتظامیہ طرف ٹرانسفارمر منظور کرنا آو, تاہم چھن پتمیو دیو رتو پہ ٹرانسفارمر محکمہ بجلی ہندو ملازمو طرف استعمال مز ان آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف محکمہ بجلی ہندن ذمہ دار منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن بتھین ول مشکل دور کرنے ین. مے ناو محمد اللہ ریشی. اس گئی ضرورت یہ ٹرانسفارمس یوت انمتس پتہ آو ٹھیکدر صاحب یور تم تر یم پول 5 کرن 15 دہ مز ریسٹ 15 دہ آو بی گنگن یم 2 لڑ پتہ ووت تو ژول جوم اس فون کران 2 رٮ۪تن چھُنہٕ فونٕے تُلان. بہرحال تُلم فون أمۍ دوٚپ مےٚ پننہِ بٹوارِ پگہہ ہسا کھسو أسۍ سامان ہٮ۪تھ. مگر پتہٕ آو نہٕ تمہِ بٹوارِ یور سُہ سامان ہٮ۪تھ کہیٖنۍ. أسۍ چھِ یِتھٕے کٔٹھۍ یہِ ٹرانسفارم گٔے اَسہِ ضوٚرتھ لٲگمٕتِس یور آو نہٕ یہِ ٹھیکدر صٲب پتہٕ ٹوٹلی کہیٖنۍ. اگر یِمو اَسہِ یہِ اوٚن اَسہِ کمہِ خٲطرٕ اوٚنُکھ یہِ. ٹرانسفارمر آز برو رٮ۪تھ ہٮ۪تھ کھولمُت یتھ پٮ۪ٹھ أزیُک تامتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان چالو گٔژھِتھ کینٛہہ. کالہٕ چھِ ونان صبحن تہٕ صبحن چھِ ونان کالہٕ تہٕ یِمو چھِ کٔرمٕژ کٲم کہِ یِمو چھِ پونٛسہٕ تہِ نِمٕتۍ ٹھیکدرو کینٛہہ ؤٹِتھ یِمن لُکن غریٖبن لُکن نِمٕتۍ پونٛسہٕ تہِ ؤٹِتھ تہٕ وُنیُک تامتھ چھُنہٕ یہِ چالو گژھان کینٛہہ. مےٚ تہِ چھِ فون 2-3 ساس کٔرمٕتۍ تہٕ آز تامتھ چھُنہٕ یہِ چالو گژھان کینٛہہ. میری ڈِمانڈ یہی ہے کہ DC صاحب سے یہ پہنچنا چاہیے. اور یہ یہاں پر بھی مسئلہ ہے, یہاں مسجد شریف میں بھی دوسری ٹرانسفارم ہے, وہ بھی خراب ہے. ان کو بھی کام لگنا چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. گزارش کرتی ہے آپ کو بھی, DC صاحب کو بھی, ایڈمنسٹریشن صاحب کو بھی, یہ ٹھیک ہونا چاہیے. کل تک اگر یہ ٹرانسفارمر چالو نہیں ہوا ہم یہ نکال دیں گے, وہاں پر جلا دیں گے. ہم کس کام کے ہیں یہ. محمد پور کلگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو, تاہم چھنہ کانٛہہ سنجیدہ قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں شہر پور حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین.
2014 पे वोत रोडस पकनाव रस रस गन तोताम खराब योताम रस कर तैयार नव मकल योताम ब्रो कन पकन वात अकवर पे आलमगंज ताम मकल गई 2014 पे पकनाव यह सड़क गरा अकवर तुरान फित बीवर मेहनत बीवर तुरान फित सिर्फ दो आय जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट गई खत्म अस पत क्या कर सड़क कूता बजट क्या पोसा कोत कोत आय क्या कर वरी खंड तो ये मोड़स तल अत द्राय बनाक टोच वोच बड़ा खत होर हूर वन अमे हूर पकन ब्रो जबरदस्त द्राय गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी कर सड़क दीतो तवज्जो अगर तुम मकान तुलवो दुकान तुलवो सड़क जारो 18 फुट 20 फुट 30 फुट बनावो सड़क यह 8 फुट तैयार गसन वनकस कोसर टू बिहीबाग रोड आलमगंज ताम रोड यह ज्यादा खस्ता हाल यह वोत 2006 पे वोत ये न मैगडम पे ये न पे कह चीज ये दह बतर बतर गसन इसलिए हम हुक्काम से ये दरखास्त करते हैं डीसी साहब से हम ये खुसूसन दरखास्त करते हैं कि वो हमारे रोड की तरफ तवज्जो दे। अगर पूरे लगभग डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सबसे रोड बहुत अच्छे रोड है लेकिन हमारी ही रोड के साथ इतनी नाइंसाफी। वार्ड नंबर 12 डोडी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में सरकार तरफ इमारत तमीर करना आई ताहम चन पतम कई काल पे यह इमारत इस्तेमाल मज अन्न आमद यम किन मुकामी लूकन हुंद बस्ती मज रोजन सठा मुश्किल सपदमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इमारत इस्तेमाल मज अन्नस हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। सर ये शर्मा जी एडमिनिस्ट्रेशन को जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर उनके पास यहाँ पे अवेलेबल है वो उनका आरटीओ अफसर जो उनका आरटीओ दफ्तर है वो कहीं साइड में पड़ा हुआ है, अभी किराए की बिल्डिंग में है वो, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं या कोई दूसरा दफ्तर जो उनका वो यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे ये पहले नारी निकेतन था उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, नगरी चले गई या कहाँ चले गए वो पता नहीं, पर जब आपके पास चीज अवेलेबल है तो इसको अपने रिसोर्स हैं उनको दे दो, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनी हुई पर वो यूज में नहीं आ रही है, तो कम से कम अपने सिस्टम को देखो, थोड़ा ध्यान दो उनके पास, आपके पास क्या चीज है क्या नहीं है, आपको इसकी जरूरत है भी कि नहीं है, ये जो है तो उसको आप अमल में लाओ। तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा किसका फेलियर मानते हैं आप? ये तो सर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जिनके देख रेख में ये सब चीजें आती हैं, यानी कि टोन के अंदर इस तरह की हालत बनी अंदर आ रही है, टोन की जो म्युनिसिपैलिटी वाले इनके अंडर आ रही है, इनके ऑफिसर के अंडर आ रही है, जो सुबह उठ के यहाँ से झाड़ू मार के जाते हैं, उनके जो मुलाजिम है उनको ये नहीं बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, अगर ऑफिसर के नोटिस में नहीं है, चेंज हो गया पुराना या नया आ गया कुछ भी, तो उनके तो नजर में तो ये चीज आनी चाहिए। मैंने सीओ साहब से बात की थी कि कम से कम वहाँ पे जेडीओ ऑफिस या कोई भी किसी का रेजिडेंस खोला जाए ताकि वहाँ बुरे काम न हो, तो अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता हाल ही में कोई हफ्ता एक पहले मैं नए सीओ साहब के पास गया था कि उनको यही दोहराया कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 साल पहले चिट्ठी लिखी है और एक महल्ले में एक बिल्डिंग का मिसयूज हो जाता है, तो उन्होंने एक यकीन दहानी दिलाई है कि चंद दिनों के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा या उसके साफ सफाई हो जाएगा और उसमें हम कोई ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन उसमें भी अभी लगभग मुझे लगता है 15-20 दिन हुए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो है बिल्कुल न्यू है और उसमें थोड़ा सा पैसा लगाना है और वो बिल्डिंग और उसकी अकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा है। हमने इनको कहा था, सीओ साहब को कहा था कि कम से कम उसमें, मैंने वो चिट्ठी जो लिखी थी सीओ साहब के वो थ्रू डीसी मैंने उनको भेजी थी, खुद मैं लेके गया था, मैंने डीसी साहब को एड्रेस किया था और डीसी साहब ने उसमें सीओ साहब को लिखा था और सीओ साहब को मैं पर्सनली गया था कि ऐसे ऐसे मसला है, इसमें थोड़ा सा काम करना। आपका जेडीओ ऑफिस जो है, बहुत सारे जेडीओ ऑफिस आपके प्राइवेट बिल्डिंग्स में है या हमारा एक स्कूल इस वार्ड में है जो प्राइवेट बिल्डिंग में, आप इसको कन्वर्ट कीजिए, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ओल्ड टाउन वारमिल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी नालस में छठ डेर जमा करने आमद तो अमे हवाले कई फिर इंतजामी के जिम्मेदार जान फराम करना आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमद यम मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद नाल सफाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। यह नाल
ये अमे खतर बनियामुत नाल तो ओवर फ्लो पगह फिल्ट्रेशन प्लांटस गसान सो आब अमे खतर वसान यप बनियामुत ड्रेन या ऑलरेडी पे पहाड़ समुक आब वसान अक्सर तम सात पगह मार्च अप्रैल में रूद वसान यह तम खतर वसान मगर बदकिस्मती अलमिया या खो गो लूको यह तमामो खो यह नाल अगर गो बाग इस्लाम बल्कि बाग इस्लाम न कहीं बल्कि फिल्ट्रेशन प्लांट कॉलोनी यह नाल तकरीबन 30 फुट खोल युस वनस रोदमुत अड़न जान 15 अड़न जान 10 अड़न जान 20 गई लूकन हज लापरवाही एलान वन और सत नाल RNB बारामूला मगर RNB बारामूला मे बासान सफाई कर्म मे बासान मान नजर मज हेक वन पत्म 10 वर 2 लट नतीज गो 10 वर मज 2 लट सफाई या लास्ट सफाई गई तकरीबन 4 वरी ब्रो आज ब्या बदकिस्मत आज बाथरूम घरों मज बन तमुक सोरे गलीज गंद पानी सोरे ग अत मज लैट्रिन तान चलान तुम वो यह बिल्कुल अलमुस इस्लामिया पार्क टू फिल्ट्रेशन प्लांट नाल मगर हालात वो तुम पान अमिक हालात जमाल यतनस यह गो बंगल बाग यह गो आरमपुर बैक साइड यथ वन बाग इस्लाम सर इकबाल कॉलोनी सर तो आरमपुर सर बंगल बाग सर चस्ती कॉलोनी पे वसान त्रावान ोट सर ये योर बाग इस्लाम इन त्रावान ोट ये सारी ये करान बर सर तो कहें ये कर फिर गुजारिश दपा ये करो सफाई करनी ना ये वो सर क्या पाइप आई मज पगह इन सात यह पाइप आई ना सर यह वन यह ोट कोत ग रुकाय ना सोरी ोट यह पाइप हत सर कहें थक वन यह वनी ना कह सर क्रालपुर कुंजर चंगमरगी जो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे कया वरी ब्रो अकिस प्राइवेट इमारत पे पब्लिक हेल्थ सेंटर बोर्ड आवेजान थावना आव ताहम आज ताम अत कामकार शुरू कर आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतन पेवान ये मुकामी लूको तरफ मुतलक इमारत मज कामकार शुरू कर मांग करना आई तब महकमा सेहत के जिम्मेदारों तरफ अमे हवाल कत करान वन आमुद महकमा सेहत तरफ आज ताम अत इलाकस मज हेल्थ सेंटर कायम करनस हवाल कह कदम तुलना आमुत तो तिमन मालूम ज बोर्ड कथु अत इमारत पे आवेजान थावना आमुत ये तो बोर्ड तुम फेक बोर्ड एज फॉर्मेलिटी मूजूब पूर बस बे ना बाकी डॉक्टर ना कह हॉस्पिटल सिस्टम ना कह कसई ना जे बिल्कुल ना कह मतलब वेटरनरी या अगर बीमार गि पे श्रीनगर वालन जे पे मतलब ये वन कह प्राइवेट गाड़ी बन मतलब आम इंसान गाड़ी वक्त कहें अगर रात किस बीमार गो हर कह युथ कहें बाकी बोर्ड तुम वो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज फॉर्मेलिटी थोमुत बस बे ना कहें अत गई 2-5 रेत अम ब्रोह तुत लोग बेक जाए मगर हसला ना क्रालपुर नाव ये गामस मान ना डॉक्टर ना हस्पताल अगर ये बेमार गसान पे सह नख नुन पटन या टंगमर्ग या कुंजर ना हिसाब ये गाँव यह हेल्थ सेंटर बोर्ड आमुत सेंक्शन गोमुत वन डॉक्टर जनाब ये बेवान कहें ना कहें वन कहें अमला वन कह खाली बोर्ड योत ना वन कहें बिल्कुल ना कहें यह गवर्नमेंट बोर्ड बमलून कंगन गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज तमीर करना आमुत वाटर रिजर्वायर पतमे कया काल पे नाकार सपदमुत तमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन कयान इलाकन मज लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने एक तो वहाँ लीकेज वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो बिल्कुल टूट चुकी है। इसके साथ साथ वहाँ से जो पानी सप्लाई होता है वो भी बिल्कुल गंदा है। हमने कई बार गुजारिश की थी ये जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, गवर्नमेंट ने उसमें जो है संजीदगी दिखाकर उसमें टेंडरिंग का काम हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है आगे वो काम क्यों रुका पड़ा है। कई बार उसकी टेंडरिंग हुई, अलॉटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता है काम आगे शुरू हो रहा है। आपने अगर देखा पूरे सब डिवीजन के लोग किसी से भी आप पूछेंगे यहाँ की जो पानी की सप्लाई है बिल्कुल ख़राब गंदा पानी लोग पी रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा ही हाल वहाँ पे जो है बर्नबुक में रहा, अभी जो लीकेज है वहाँ पे कभी भी वहाँ पे हादसा हो सकता है। वहाँ पे अगर वो ब्लास्ट हुआ उसका फिर जिम्मेदार कौन? फिर बाद में जो है डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमें इस चीज़ की खबर ही नहीं थी।
आपकी तरफ से उनको कई बार आगाह किया गया। हम भी अब गुजारिश करते हैं उनसे, या तो वो एक तो वो लीकेज ठीक कराए, उसके साथ साथ जो फिल्ट्रेशन प्लांट का काम रुका पड़ा है उसको आप वो देखें कि कहाँ पे जो है दिक्कत आ रही है। ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू किया जाए। आज हमने यहाँ पे विजिट किया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बर्नबुक में। जो हमने आज यहाँ पे नोट्स किया, यहाँ पे बहुत ही खस्ता हाल में है। जो यहाँ के इक्विपमेंट्स हैं उनमें बहुत ही जंग लगा है, वो किसी काम के लायक नहीं है। और यहाँ की जो वाटर टैंक है उसमें भी लीकेज है, वो कभी भी बर्स्ट हो सकती है। और सबसे मेन का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि यहाँ पे 24 आवर्स नहीं चलती है। तो वो यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से चलती है। जब शेड्यूल ऑफ होगा तो उस वक्त पानी फिल्टर नहीं होता है, जो कि पानी फिल्टर होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे एक तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट्स है इंशाल्लाह ये भी चेंज करवा देंगे। ये इशू हम हायर अथॉरिटी से, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से मैम से ये डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कोई ना कोई हल निकालेंगे। इससे पहले हमने विजिट किया कि पानी बहुत ही खराब आ रहा था। इससे पहले इसमें वो रेड कलर का पानी आ रहा था, तो वो भी साफ करवा दिया। और पाइपलाइंस में लीकेज थी जो लोगों को सप्लाई हो रही है, तो वो भी महकमे मौसमियात तरफ ये वादी हंदिस मौसम में तब्दीली नश पेशन गोई कर आम तत दुपहर पत वादी हंदन हेरमन इलाकन मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पेन वुचन आमुत यल जन सयाती मुकाम गुलमर्ग तो द्रंग टंगमर्ग मज मौजूद सयाह सठे खुश वुचन यपर इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित अमल मुतहरिक करना आमुत युद्ध जन गुलमर्ग इन वालन सयाहन कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। मेरा नाम पार्थ है, मैं भी सूरत गुजरात से हूँ। यहाँ पे पहली बात तो है कि मौसम इतना बेहतरीन है। मैं लगातार 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये जनवरी एंड में ही आता हूँ क्योंकि मुझे स्नो अच्छा लगता है, तो मैं स्केटिंग, आइस स्केटिंग, फिर स्की वगैरह करने आता हूँ। वाटरफॉल अभी तो ये पानी दिख रहा है, पर ये अब हफ्ते पहले ये पूरा स्नो था, तो वो देखने के लिए आया था। पर अभी ये पानी है तो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। कश्मीर और जन्नत दो नाम एक साथ लिए जाए तो कोई गलत नहीं होगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जन्नत की, जो जन्नत का नज़ारा होगा जो मेरे मन में था, वो आज मेरे मन में लेके जा रहा हूँ मैं। यहाँ के लोग एक्सीलेंट, कोई मतलब कंप्लेन की बात नहीं है। ये वाटरफॉल मतलब बर्फ माइनस का टेम्परेचर में बहता हुआ पानी कहाँ देखने को मिलेगा, तो वही एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, वो हम यहाँ पे खड़े। नवकूट जबड़ी बानल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस मज लूकन कया और रंगो मुश्किल बेहतरीन पेवान तम हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लोगों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावन सवाल गन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हमारी पुल बनी, ठुठेरे बने तो ऊपर उसके में कोई उसके ऊपर सामान नहीं दिया। आगे एक बात, BPL राशन कार्ड हर बच्चा को बनाया, तो क्या जी बनाएंगे, तो दिया किसी ने कुछ भी नहीं। EPL जनाब 8-8, 6-6 घर, एक घर में, तो कोई मकान शुकान पेंच नहीं देता। मेरे अगर कल 2-4 आदमी DC साहब के पास खिलाफ करने के लिए, अगर तू ब्लॉक में दिया था, मकान देता था, तो मैं क्यों नहीं देता था। सिर्फ बदनामी है, तो और कोई देने वाला ना कोई देखने वाला। हमें सिर्फ गवर्नमेंट क्या करे, यहाँ से बेदखली दे, तो हम किसी इलाके में चले जाओ। आप देख रहे हैं कि ये पसमंदा इलाका है और नेशनल हाईवे से जो है कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन सवाल ये चीज़ है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा जो है पीछे छोड़ा, कभी कोई पूछने वाला यहाँ आया ही नहीं। मसला ये है कि सबसे पहले बिजली का, बिजली के खंभे जो आज से पहले 30 साल लगे हैं और आज भी वही है। मैं बिजली वालों को, खासकर PDD डिपार्टमेंट को ये कहता हूँ कि जिस वक्त हमारे लोग 6 महीने ऊपर रहते हैं और वो बिल भी हमें देनी पड़ती है, उसके बाद फिर 6 महीने नीचे रहते हैं। अगर चिड़िया कहीं बैठ जाए हमारी तार के ऊपर बीट कर ले तो बिजली खत्म, ट्रांसफार्मर खत्म। क्या हमारा ये डिपार्टमेंट तब तक 6 महीने सोया रहता है? इनको पता नहीं कि हमें कम से कम 6 महीने इन गरीबों को। तो नाजरीन वोत कशर खबरनाम अंद युद्ध जिंदगी रोज पगह सब्द तहसीद बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत।
खुदा सवाल।